बच्चों, this lecture is related to wage employment programs in poverty. Alright, this was the last topic which was left. Wage employment program. Actually, government to remove poverty, government starts two types of employment. One is self-employment programs, under which they help them by providing them loans at subsidized rates, and so that these people can start their own micro ventures, alright, so that their livelihood they can earn on their own. In fact, when they employ themselves, they are actually a source to employ the others also many a times, right? So the second way is by offering them jobs. Now what are the programs, what are the various programs under which government provides jobs to these unskilled people, and they absorb them maybe in agriculture, and there are many schemes which we have to understand. So let's start with the first one. So you have in your handouts, first one is Sampurn Gramin Rozgar Yojana. अब देखो बच्चों, नाम से ही के लिए है ये योजना, ओके हो गया। सो गांव में किसके अंडर पढ़ रहे हो? वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक। सो अब क्या क्या कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे आप? करेंगे दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एडिशनल एंड सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट। बच्चों, जब भी गाँवों की बात करेंगे, गाँव में मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज ऑलवेज द एग्रीकल्चर. Now when it comes to agriculture, agriculture is a seasonal work, all right? So it's a seasonal job. So season wise काम होता है, तो उनका वो काम तो है ही, but जब now after sowing the seed, the farmer is not supposed to sit in the farm and look at the saplings growing, and when will they reap the fruit. So in between, what are they going to do? So the question comes, सोइंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, यहाँ तक तो इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन इसके बियॉन्ड अब आपकी क्या ज़रूरत है? तो आपकी इनकम कहाँ से आएगी? जब आप हार्वेस्ट करेंगे तभी आएगी ना। तो ये जो बीच का टाइम है, ये बहुत लंबा टाइम होता है, 5-6 महीने वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इसमें ही अपनी लाइवलीहुड कैसे अर्न करें? तो तभी वर्ड यूज़ किया है, गवर्नमेंट सप्लीमेंट देयर इनकम. सो दैट्स द एडिशनल इनकम विच दे ट्राई टू जनरेट फॉर, they help them to generate for themselves, all right? So underline कीजिए, supplementary income होती है, wage है, by undertaking. अब उन्हें किस तरह का काम देते हैं? labor intensive. Of course they cannot give them capital intensive तो नहीं है ना, वो labor है, so labor driven काम दे दिया जाता है. It could be cleaning the road sides, ठीक है, painting on the road, जिसमें बहुत सारे skills की जरूरत नहीं होती, वैसे टाइप के काम होते हैं. Thereby providing food security and increasing nutritional level, right? So ensuring that they should get proper food, all right. Wages paid as, अब देखो जो काम लिया गया उसके बदले में उन्हें कैश में भी पेमेंट दी जाती है और काइंड में भी. It's something like let's put an example so that you can get a fair idea about it. Now what's that example? बहुत बार गवर्नमेंट के जो कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, जहाँ पर दे स्टोर पोटैटोज, टमाटोज, ज़्यादातर जो क्रॉप है वो पोटैटोज को हम स्टोर करके रखते हैं. अब वहाँ पर देखिए, पोटैटोज को भी सेग्रीगेट करना पड़ता है, ABCD कैटेगरीज का होता है, तो उसे सेपरेट करना भी इज अ टास्क, और उसमें कोई बहुत सारे स्किल्स की जरूरत नहीं होती. वंस दे आर टोल्ड दैट इस टाइप का पोटैटो, इस शेप का, इस कलर इस तरह का होगा, इसे आप A सेक्शन में डाल दें, B में ये आएगा, C में ये आएगा, और इनको बता दिया गया, एंड दे स्टार्ट सेग्रीगेटिंग. नाउ व्हाट कैन बी गिवन इन रिटर्न इज, वन, they sometimes give potatoes in return, maybe 1 kg 2 kg according to the hours they spend there. And second, if they do not want the wages in kind, so the money can also be given, all right? So I'm sure you are understanding that by once you've taken their services, so we are supposed to pay them, so this payment can be done either in cash or in kind. I'm sure it's clear. So it's written here, food grains भी दिए जा सकते हैं, cash भी दिया जा सकता है, or even a combination of both, all right? The scheme of SGRY is open to all rural poor who need wage employment and desire to do manual and unskilled work. So you need not to have specially some skills to perform these tasks. So any person can do it, right? Okay. Next program is National Food for Work program. Ab name itself is clearing that food for work. Do the work and get the food in return. Okay.
दिस वाज एन ओल्ड प्रोग्राम, 2004 में लॉन्च हुआ था एंड इट वाज टू इंटेंसिफाई और टू इंक्रीज द जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो फार्मर है, स्मॉल फार्मर, उसने अब सोइंग कर दिया, अब वो फ्री है, अब खाना कहाँ से खाएगा, तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, यू कम टू अस, यू वर्क हियर एंड गेट द फूड इन रिटर्न, एटलीस्ट यू विल गेट फूड, और तो उनकी बहुत बड़ी नीड्स नहीं होती। नाउ दिस प्रोग्राम वाज started in 150, it's written, please mark it, 150 most backward districts, alright, और ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में था। आपको इस प्रोग्राम को इस तरह से याद रखना है कि लेटर ऑन ये जो प्रोग्राम था, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसे एमजी नरेगा में मर्ज कर दिया गया। ओके, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि बहुत सारे पुराने प्रोग्राम्स जिनमें किसी तरह के कोई लूप होल्स थे या कोई प्रॉब्लम्स थी, तो उन्हें क्या किया गया, उन्हें किसी न्यू प्रोग्राम के साथ क्लब कर दिया गया, सो दैट टू गिव बेटर फीचर्स टू दैट प्रोग्राम। तो नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा हुआ, एमजी नरेगा। सो यू हैव नो चॉइस, ये प्रोग्राम तो आपको बाय हार्ट याद करना है। तो क्या क्या इसके फीचर्स हैं आप समझ लीजिए जरा ध्यान से। एमजी नरेगा, पहले तो इसकी फुल फॉर्म आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमजी नरेगा। ओके, ये महात्मा गांधी के नाम पर स्टार्ट किया गया है, दैट इज व्हाई इट इज एमजी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, गिवन इन योर नोट्स, राइट। सो व्हाट इज दैट से, नेशनल रूरल, रूरल में एम्प्लॉयमेंट की आप क्या दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, ये उसका एक्ट है। दिस एक्ट वाज पास्ड इन 2005। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स। ये एक्ट 2005 में पास किया गया। ओके, इसके अंडर हम गारंटी वर्ड लिख रहे हो ना, तो इट मींस दे गारंटी कि आप हमारे पास आए, हम आपको 15 डेज के अंदर अंदर, कितना 90 डेज था, 100 डेज था पहले, नाउ इट हैज बीन रेज्ड टू 150। क्या मतलब, हम आपको 100 डेज के लिए एम्प्लॉय कर देंगे। इट कम्स आउट टू बी 3 months, गुड और 3 months, सो नॉट बैड, at least they are supplementing their income for 3 months. लेकिन now it has been revised to 150 days. Now the question comes, what do we have to remember? Now supposingly if you are asked to write a short note on MG Narega, so you mention both. Initially it used to be 100 days, but now it has been revised to 150. But MCQ में तो single answer होता है, तो NCERT has not revised their book till now. If it will be updated, it will be informed you before the exam, but in NCERT it is written 100 days, so we are supposed to use 100 days if it's a question of MCQ, all right। अगर एग्जाम्स आने तक NCERT ने अपडेट कर दिया और उसे पब्लिश कर दिया तो हम भी इसे रिवाइज कर देंगे, लेकिन फिलहाल आपको मैंने 2 बातें कही। 1, if this comes in short note, then you have to cover everything about it. So you do mention that you know and tell the teacher, make an impression that you know initially it used to be 100, now it has been revised to 150. But when it comes to MCQ, there cannot be 2 answers. Remember, you cannot write 100 bracket 150. It is going to be wrong. So for that you have to refer NCERT updated one. All right, चलिए एग्जाम में जाने से पहले ये क्लैरिफाई करके जाएंगे हम, ठीक है जी। और इसके बारे में क्या है, इसके बारे में है ऑफ कोर्स अनस्किल्ड है, ये तो हमेशा ही लिखना है बेटा आपने, क्योंकि इसमें किसी तरह के स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है। सो दे आर एम्प्लॉइंग अनस्किल्ड लेबर, ऑलराइट, एंड इफ दे फेल टू गिव दिस जॉब इन 15 days, क्योंकि दे गारंटी दैट वी विल गिव यू, सो देन दे आर सपोज्ड टू गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस? Allowance is money will be given in return if I fail. Now when I guarantee I will give you the job, so there should be some punishment also if you do not do. So if I fail to give you job within 15 days, I will give you money in return. आप बिना काम किए आपको allowance means it's the compensation which will be given to you because I failed to fulfill my promise. So unemployment allowance. एक और बात जो आपको इसके लिए याद करनी है वो है 1/3 of the jobs are reserved for women. इनमें से आप एक भी फीचर मिस नहीं करेंगे when it comes to short note. Even if it is for 2, 3, 4 marks, you're supposed to cover everything. All right? Okay.
One last thing about this is ये MG नरेगा 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करती है, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड. Alright, so what are the features which you have to remember? Quickly, let's recap. One, this program was incorporated in 2005. This act was passed in that time. और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को इसमें सबमर्ज कर दिया गया. दूसरी बात क्या थी, हम इनमें क्या कर रहे हैं, मिनिमम वेजेस के लिए हम जो है सप्लीमेंट कर रहे हैं लोगों की इनकम को रूरल एरिया से. कैसे? 15 दिन में हम उन्हें 100 डेज के लिए या 150 डेज विच इज द रिवाइज्ड डेज, इतने देर के लिए जॉब देंगे. इफ वी फेल टू डू सो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस विल बी गिवन. ओके, अनस्किल्ड लेबर इन्वॉल्व है, then 1/3 of the jobs are reserved for women. Okay, and it is 100% centrally sponsored scheme. I'm sure there is no problem in this remembering. So ये आप इस तरह से याद कर लीजिए और इसके keywords नोट करिए और अपने sentences में डाल दीजिए. मैंने कुछ latest programs नीचे लिस्ट डाउन किए हैं. ये अभी NCERT में अपडेट नहीं हुए हैं. It's just for your information that what is happening around in the country, especially happening in the country, so you should be aware as economic students. That is why I've included, so you can just read them out and just keep it aside. अगर NCERT include कर लेगी तो फिर हम इनके features को include कर देंगे और याद कर लेंगे. So I'm leaving that. I'm reaching to the last question of this chapter, that is question number 14. Critically evaluate poverty alleviation program. So when it comes to critically evaluate, okay, so it means वैसे generally critically evaluate का मतलब होता है you have to talk about the positives as well as the negatives. So लेकिन हमारे पास poverty पूरी तरह से alleviate नहीं कर पाए हैं, तो आप इसको भी इस तरह से ऐड कर देंगे. इसके ऊपर एक पैराग्राफ आप खुद ऐड कर लेंगे, saying that although there are many programs which are run by the government, wage employment programs है, self employment programs है, do write down the names of those programs by for reference. MG नरेगा है, उधर से कोई और डाल दीजिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, तो हमने ये डाल दिए, नाम लिखे. and through this government is able to help many people. You remember वो माइक्रो यूनिट्स प्रधानमंत्री रोजगार योजना में, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में millions of people are able to start their micro businesses. So it has become fruitful for them. They're able to get their supplement, their income. So इस तरह के कुछ positive points लिखने के बाद मैंने आपको इसके critically negative evaluation जो है वो दे दिया है. Positive you will write it down on your own. So the space is given. Now number 1, हमारे पास resources की कमी है. Resources when it comes to what does this mean? It means funds. पैसों की कमी होने की वजह से हमारे पास, अच्छा पैसों की कमी क्यों है? बिकॉज इधर से पॉपुलेशन ग्रो होती है, इसीलिए हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं होते. दूसरा, एसेट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है. जमींदार्स आर होल्डिंग ह्यूज लैंड्स, राइट, ह्यूज पीस ऑफ लैंड दैट बिलोंग्स टू जमींदार्स. सो हाउ टू टेक इट अवे फ्रॉम देम एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द अदर्स, दैट कुड हैपन थ्रू लैंड रिफॉर्म, और वो सक्सेसफुली हुआ ही नहीं. सो वो भी एक क्रिटिकली नेगेटिव पॉइंट में डाल दीजिए. इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन. हमारे देश में प्लानिंग तो बहुत होती है, लेकिन वेयर डू वी फेल एट? वी फेल एट इम्प्लीमेंटेशन. हमारे देश में नहीं, हम सबके साथ होता है. आप भी बैठ के बड़ा जोश आता है, जिस दिन टेस्ट हुआ ना, नंबर नहीं आए होते, अंदर से आवाज़ आती, नहीं यार बस बहुत हो गया यार, इतना ज़्यादा मैंने अपना काम खराब कर लिया, अब मैं टाइम टेबल बनाने वाला हूँ, मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ने वाली हूँ और मैं ये करूँगी, और बड़ा टाइम लगा के हमने टाइम टेबल बनाया. कितने दिन फॉलो होता है? आई एम सॉरी, कितने घंटे फॉलो होता है? दैट्स द राइट थिंग. सो वेयर डू वी फेल एट? वी फेल एट इम्प्लीमेंटेशन. एंड व्हाई वी से दैट दीज वेस्टर्न कंट्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम अस? व्हाई डू वी से दैट? पहली बात, वो प्लान बनाते नहीं, बनाएंगे तो उसे रिलीजियसली फॉलो किया जाता है. वी चलिए आगे चलते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. सो इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन. सो प्रोग्राम्स जो हैं वो मेनली डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट पर, बैंक ऑफिशियल्स पर. दे आर करप्ट, उन्हें ट्रेनिंग ही नहीं है, उनकी बात समझने की ही उनमें शक्ति नहीं है. तो और जो लोकल मनी लेंडर हैं उनके जेस्चर्स बड़े अच्छे हैं, आइए कितने पैसे चाहिए, कोई बात नहीं ले लो, चाहे वो बाद में एक्सप्लॉइट ही करते हैं. बट हमारे बैंक एम्प्लॉयज़ तो इस तरह से ट्रेंड नहीं हैं, और प्रोग्राम्स की उन्हें नॉलेज ही नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम. इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है हमारे पास. When it comes to infrastructure, we talk about schools, roads, power, telecom, IT. अगर ये सब हो
तो फिर क्या हो, किस एरिया में, जो पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ ग्रोथ हो जाए। अगर ये सब कुछ वहाँ आ जाए तो लोगों को जॉब मिलेगी, लोग भी इंटेलिजेंट होंगे, उनके पास कम्युनिकेशन फैसिलिटी होगी, दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद अर्बन एरियाज, they will be able to find out more employment opportunities and they will grow. Clear? Then last, lack of active participation of poor. Oh my God, how come this point is here? आप ना किसी भी बेगर को, बहुत बार हमें चौक पर या कहीं भी जाएं हमें मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, तो बेगर को आप, बेगर मिला, आपने उसको कुछ खिला दिया तक तो ठीक है। जैसे ही आप उसे आइडिया देते हो कि why do you beg? It's not a nice thing. Begging is illegal. You should not do that. Why to spread your hands in front of anyone? Why don't you work? So पता है आपको किस तरह की लुक देते हैं कि प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। Actually they are, I would say they are conditioned to this situation. They actually do not want to come out of it. तो आप किसी को जबरदस्ती तो पॉवर्टी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनको वहीं रहने का हैबिट हो गई है या कंडीशनिंग हो गई है, एंड दे आर एंजॉयिंग दैट कंडीशन. सो दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द रीजंस दैट दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉवर्टी इज एक्सेप्टेंस, दे हैव एक्सेप्टेड इट and they are not ready to come out of it, right? So this is all about chapter poverty, and we've covered almost all the topics according to NCERT. So you can learn all the notes. इसके बाद आपको जो है MCQs के लिए what you should do is pick up all the keywords and you should underline, because वही उसी टाइप के questions ही MCQs में टेस्ट होता है. All right, bye bye, take care.